डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम वर्क एनर्जी थ्योरम को इन्वॉल्व करते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनको इन्वॉल्व करते हुए कुछ टिपिकल क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, आप सभी क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर करें। हाँ, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करूँगा आज की क्लास में। मैं चाहता हूँ कि आप हर क्वेश्चन को सुनने के बाद वीडियो पॉज करें और अच्छे से ऑनेस्टी के साथ अटेम्प्ट करें। सो वी विल नॉट काउंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वी विल सी वेदर यू आर एबल टू डू देम और नॉट। थिंक ऑफ a circular track. It is not a complete circle, it is nothing over here. It's like this, it is an arc of a circle, it is a smooth track, no friction. Radius is r, this angle is say 53 degree and this one is 37 degree. This is vertical line. So from this end of the track a small block is released. A small block is released from this end of the track. It slides down without friction and leaves the track at point B. The block leaves the track at point B. क्वेश्चन में पूछा गया है how much height the block will attain above point B during its course of motion. Find maximum height attained above point B. After the block leaves the track, find the maximum height that it will attain above point B. Give it a serious try. All of you, please. The first step, I am solving the question. I am assuming that you have paused the video and you have tried this one honestly. When the block reaches point B, this point B is definitely below point A. So when block reaches point B, it will be having some speed. After point B, there is no track, right? So when the block is at B, it is having some speed V, and after point B, it is experiencing only one force, that is gravitational force mg. So block will get airborne, it will be flying in the air, and only one force will be acting on it, that is mg. So it will definitely move on a parabolic trajectory, just like a projectile. So from here onwards, the block will take a parabolic path and go like this. तो हमें बेसिकली पॉइंट बी पे पहले स्पीड पता करना चाहिए और फिर पॉइंट बी के आगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सोचते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि पॉइंट बी से मैक्सिमम कितने हाइट तक ये ब्लॉक गया. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड स्पीड एट पॉइंट बी. सो टू कैलकुलेट speed at point B, we can apply law of conservation of mechanical energy
as the block moves from point A to point B. So, kinetic energy at B plus gravitational potential energy at B is same as kinetic energy at A plus potential energy at A. What is kinetic energy at B? That is what we wish to find. We wish to find speed at point B. What is gravitational potential energy at B? For writing that, we need to choose a reference point. Let us say this lowest position C is the reference level. This is our reference level. So, potential energy at B simply means mgh, where h is height of the block above point C, this height. ब्लॉक जब यहाँ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है, where h is this height. How much is this height? How much is this height? Answer is, it is r minus r cos 37 degree. Can you see that? This is r, and in this triangle, this right angle triangle, this length is r cos 30 degree. This length is r cos 30 degree. This length is y. Y upon r is cos 37 degree. Therefore, this length y is r times cos 37 degree. This is r cos 37. So, this length is r minus r cos 37, which I have written r minus r cos 37 degree. mgh, this is potential energy at B. This will be equal to kinetic energy at A, which is 0, plus potential energy at A. Now, what is the value of potential energy of the block at point A? In a similar fashion, you can write potential energy at A. Potential energy at A is mgh, where h is this height, this height. So, how do we write this height? R minus this length. In this triangle, this is r cos 53 degree, r cos 53 degree. This is r minus r cos 53 degree. This is this height. So, it will be r minus r cos 53 degree. So, solving this equation will give you the value of V. M cancels out, and we are left with V square by 2 is equal to, see, mgr, and mgr also cancels out. M, in fact, we have cancelled from all the terms. So, it becomes g times r times cos 37 degree minus cos 53 degree. खुद से सिंप्लीफाई कर लीजिए, m को कैंसिल कर दीजिए, g into r and g into r cancels out. So, v square by 2 is equal to gr cos 37 degree transferred to this right side minus gr cos 53 degree. So, this gives you v. V square is 2 gr, cos 37 is 4 by 5, and cos 53 degree is 3 by 5. So, 4 by 5 minus 3 by 5 is 1 by 5, which implies that V is under root 2 gr by 5. This is the speed of the block at point B when it leaves the track. After that, it gets airborne and it goes on a parabolic trajectory. So, from here onwards, you should think in terms of projectile motion. You can think in terms of projectile motion. Yes, in fact, you can also still think in terms of energy conservation. Something like this. First, let us figure out what is this angle. What is this angle theta? This is 37 degree. So, this is 53 degree. This is 90 degree. Velocity is tangential to path. This is radius
perpendicular to it is tangent. So this is 53, this is 90, this is 180 degree. So this is 90, this is 37, this is obviously 53 degree. So question asks us to find this height h. If you wish to apply energy conservation, yes, you can do it. In fact, using energy conservation between this point and this point or this point, whichever, can directly give you the answer. Because we know that at topmost point, the velocity of projectile is v cos 53 degree. So velocity here is known, velocity at this point is also known. We can calculate this height h by applying law of conservation of energy, or you can directly write the formula for maximum height attained by a projectile. Whichever way you please to do it, you can do it. Maximum height attained by a projectile is given by v sine 53 degree whole square u square sine square theta divided by 2g. So just substitute for v here and you will get the answer. V square is 2gr by 5. Sine 53 degree is 4 upon 5 squared, sine 53 degree squared. This whole thing divided by 2g, right? So 2g cancels out. You are left with r 16, 2g and 2g cancels out, 4 square is 16 divided by 125. So students, please cross check the calculations. I hope I have not made any mistake. और अगर कोई है तो खुद से करेक्ट कर लीजिए. यहाँ से यहाँ के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, you get speed v, and then you can directly apply the formula of maximum height attained by a projectile, u square sine square theta by 2g. So v square is 2gr by 5, sine 53 degrees 4 by 5, square of that divided by 2g. 2g cancels out, 16r by 125. So this is the maximum height attained by the particle above point B. The important thing to realize is at maximum height, the speed of the particle is not zero. कुछ लोग डायरेक्टली ऐसा एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे तो स्पीड जीरो होता है, तो जितनी हाइट से इसको छोड़ा है ये उतनी हाइट तक जाएगा, सेम ए के बराबर हाइट तक जाएगा. दैट विल बी रॉन्ग बिकॉज एट मैक्सिमम हाइट the projectile will be moving horizontally with some speed. So at maximum height its kinetic energy is not zero. So the entire potential energy has not been converted back into potential energy. A part of it is there as kinetic energy, and remaining amount of energy is this potential energy mgh. So I hope you have understood this question. This was a rather simple question. Now, I will ask one question that was, if I am not mistaken, it was asked sometime by IIT around year 2000 or 2002. Question goes like this. This is a pendulum, simple pendulum of length L. There is a small particle attached to the end of the string. This pendulum bob is projected horizontally with speed u. It moves on a circular path obviously, and the question says that at certain point the particle leaves the circular trajectory. Repeat. At certain point, the particle leaves the circular trajectory, and thereafter it crosses this line mn, vertical line mn, at some point while it was moving horizontally. ठीक है समझिए.
इस पार्टिकल को थ्रो किया आपने, इट गोज इनटू अ सर्कुलर पाथ and at certain point it leaves the circular path. You already know that this can happen if u is greater than under root 2 gl but less than under root 5 gl. So obviously value of u lies somewhere between under root 2 gl and under root 5 gl. So this particle moves on a circular path initially. At certain point it leaves the circle and thereafter you all know it moves on a parabolic path like a projectile. So after leaving the circle, the particle crosses this dotted line Mn while it was moving horizontally. Particle जब इस line Mn को क्रॉस कर रहा है तो ऐसा नहीं चल रहा था, ऐसा नहीं चल रहा था, उसकी velocity horizontal थी, and it is given that the separation between the initial position of the string and this vertical line is L by 8. It is given that this separation is L by 8. You have to find the value of u. हम किस स्पीड से यहाँ पार्टिकल को फेंकें जिससे कि वो कहीं जाकर सर्कुलर पाथ को छोड़ दे, उसके बाद जब वो एक पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा है, पैराबोलिक पाथ पे रहते हुए वो इस वर्टिकल लाइन Mn को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते वक्त क्रॉस करता है। जब ये प्रोजेक्टाइल की तरह चल रहा है, जिस समय उस वर्टिकल लाइन Mn को क्रॉस कर रहा है उसकी वेलोसिटी ऐसी या ऐसी नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। इस लाइन की दूरी इनिशियल पोजीशन से L/8। आपको u की वैल्यू बतानी है। प्रेस द पॉज बटन, डू इट, टेक सफिशिएंट टाइम। दिस क्वेश्चन may be slightly difficult, so take sufficient time and try to do it. Students, again I am assuming that you have given it fair amount of time and few of you might have solved it also. So let us see. This is vertical circle of radius L, right? This is the initial position of the particle. It was projected with some speed u. We know that the particle will leave the vertical circle at some point like P. पार्टिकल जो है इस हॉरिजॉन्टल रेडियस के ऊपर किसी पोजीशन पे ही सर्कल को छोड़ेगा। लेट अस से पार्टिकल लीव्स द सर्कल एट पॉइंट P। P की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल से OP क्या एंगल बना रहा वो ले सकते हैं या ये एंगल ले सकते हैं। चलिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से ही ले लेते हैं, थीटा। Let us say particle leaves the circle at point P. Thereafter, it moves on a parabolic path. इस समय इसके पास velocity है v। रस्सी ढीली हो गई, रस्सी अब पार्टिकल पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रही है, पार्टिकल पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है mg। तो नेचुरली वो एक प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करेगा। तो हियर ऑनवर्ड्स the particle moves on a parabolic path like this, and according to the question it crosses that line Mn when it is at the topmost point of its path. Please recall that एक प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है जब प्रोजेक्टाइल अपने पाथ के टॉप पे होता है। तो यहाँ के बाद रस्सी का कोई कंट्रोल नहीं है पार्टिकल पे। पार्टिकल एक इस रेड पैराबोलिक पाथ पे चला और जब वो इस डॉटेड लाइन Mn को क्रॉस कर रहा है उस समय डेफिनेटली ये प्रोजेक्टाइल अपने ट्रैजेक्टरी के टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तभी तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है। तो प्रोजेक्टाइल के ट्रैजेक्टरी का टॉप मोस्ट पॉइंट इस लाइन Mn के ऊपर लाई करता है। दिस इज व्हाट क्वेश्चन इज टेलिंग यू। इस लाइन Mn
को ये पैराबोलिक पाथ कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एट टॉप मोस्ट पॉइंट. दिस इज व्हाट क्वेश्चन टेल्स यू एंड दिस सेपरेशन इज L/8. ये सुनने के बाद भी हो सकता है आप में से कुछ लोग क्वेश्चन को फिर से ट्राई करना चाहें. यस, प्लीज डू इट. नाउ let us, I am omitting this diagram. Let us assume that particle leaves the circle at point P when its speed is v. ठीक, यहां पे पार्टिकल ने सर्कल को छोड़ा. इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं आप? इस जगह पे रस्सी में टेंशन 0 है. अभी तक पार्टिकल सर्कल में है, पॉइंट P तक सर्कल में है. इसके ठीक बाद पार्टिकल सर्कल में नहीं है. आप देखिए, सर्कल के सेंटर की तरफ एक्ट करने वाला फोर्स जस्ट एट P और जस्ट बिफोर P इज mg cos थीटा. मैं यहां नहीं दिखा रहा हूं, ड्राइंग बहुत कुछ गंदा हो जाएगा. mg का कंपोनेंट mg cos थीटा. रस्सी का टेंशन P पे जस्ट 0 हो चुका है. पार्टिकल जस्ट P तक सर्कल में, उसके बाद सर्कल में नहीं है. उसके बाद वो अपने पैराबोलिक पाथ पे. सो एट P वी कैन राइट mg cos थीटा इज mv स्क्वायर बाय L, mv स्क्वायर बाय R. Length of the string is L. Am I right? So this gives you GL cos theta is V square. ठीक, इस पॉइंट पे जहां प्रोजेक्टाइल ने सर्कल को छोड़ा, रस्सी में टेंशन 0 हो गया. सर्कल को छोड़ने का मतलब ही है कि टेंशन 0 हो गया. mg का कंपोनेंट mg cos थीटा सेंटर की तरफ है एंड इट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय R. इसके बाद पार्टिकल इस पैराबोलिक पाथ के ऊपर चल रहा है. पार्टिकल इज मूविंग लाइक ए प्रोजेक्टाइल. तो ये प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है? देखिए, मैं इसको PQ लिख दे रहा हूं, है ना. PQ इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. और अब रस्सी का कोई कंट्रोल नहीं है, रस्सी ढीली हो चुकी है. हाँ ठीक है, रस्सी बंधी है पर वो ढीली है. एक पार्टिकल को तुमने v वेलोसिटी से ऐसा फेंका हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे, ये एक ऐसा पैराबोलिक पाथ पे जा रहा है. रस्सी कोई फोर्स नहीं लगा रही, वो ढीली है. तो आप देख सकते हैं एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा और ये एंगल फिर से थीटा है. देखिए, वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग, ये रेडियस 90 डिग्री, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये फिर से थीटा. सो क्वेश्चन ऐसा है कि एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे फेंका गया, वो इस रेड कलर के पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है. इस पॉइंट का नाम भी मैं दे देता हूं S, टॉप पॉइंट के ठीक नीचे वाला पॉइंट. प्लीज ध्यान से देखिए, जो लेंथ SP है, SP, दिस इज हाफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. ये जो प्रोजेक्टाइल है, आपने इसको ऐसा थ्रो किया, टॉप मोस्ट पॉइंट के ठीक नीचे ये पॉइंट है S. दिस इज हाफ ऑफ द रेंज, दिस इज टोटल रेंज, दिस इज हाफ ऑफ द रेंज, जो एक हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का रेंज का फॉर्मूला आप जानते हैं, उसका हाफ कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू दिस लेंथ, राइट. सो देयर इज अ ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप, इफ यू कैन सी, द ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप इज PS plus SQ is equal to L sin theta. Can you see that? In this particular triangle, this length is L sin theta. This is L, this is theta. So this is L sin theta in this triangle, right angle triangle. This is L sin theta. This L sin theta is this plus this, which means PS is nothing but half of the range of the projectile. प्रोजेक्टाइल के रेंज का जो फॉर्मूला होता है उसका हाफ, तो हम यहां पे लिख रहे हैं हाफ ऑफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. V स्पीड से थीटा एंगल पे एक प्रोजेक्टाइल को फेंका,
उसके रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा, उसको मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख रहा हूं, नहीं साइन 2 थीटा ही लिख देता हूं, नहीं तो आप में से कुछ लोग बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये वी स्क्वायर साइन 2 थीटा क्या है बेटा, फिर से समझो, इस पॉइंट के बाद रस्सी है ही नहीं, फोर्स नहीं लगा रही है पार्टिकल पे, पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे वी है और वो एक प्रोजेक्टाइल की तरह चल रहा है, तो उसकी जो कंप्लीट रेंज होनी चाहिए, अगर एक प्रोजेक्टाइल को वी स्पीड से फेंके थीटा एंगल पे, तो रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, उसका आधा कर दिया, ये रेंज का हाफ हो गया। दिस लेंथ इज गिवन L by 8, क्वेश्चन सेज दिस लेंथ इज L by 8, L by 8, so SQ is L by 8, this is equal to L sin theta, very simple, this is L by 8, this is half of the range of the projectile, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये लेंथ हुआ, this length is L sin theta. So now if you look carefully, you have got two equations and there are two unknowns. Look at equation 1 and 2. Theta is something which you don't know, V is something which is unknown. So theta and V are two unknowns and there are two equations. So अगर आप कोशिश करेंगे तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से थीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी और V की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब ट्राई करके देखिए, फिर से वीडियो को पॉज कर दीजिए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए टू गेट द वैल्यू ऑफ V एज वेल एज थीटा। मैं कर रहा हूं, साइन 2 थीटा को मैंने लिखा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इज 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 कैंसल्स आउट, सो इट बिकम्स V स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। I hope you are getting it. Sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. This 2 and that 2 cancels out. Plus L by 8 is L sin theta. Right? Now, let us say we wish to find theta first. So, from this particular equation, I can write V square is equal to GL sin cos theta over here. यहाँ से V स्क्वायर की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा V स्क्वायर की जगह लिखेंगे GL cos थीटा, GL cos थीटा, तो दैट cos थीटा इंटू दिस cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, V स्क्वायर की जगह लिखा GL cos थीटा, cos थीटा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बाई जी प्लस L बाई 8 इज L साइन थीटा। ठीक है, नाउ दिस G and G cancels out and you can see that L is common in all three terms, so L also cancels out. So you are left with this equation, cos square theta into sin theta plus 1 by 8 is sin theta. This equation can be solved to get the value of theta. अभी भी आप में से कोई ट्राई नहीं कर रहा था तो एटलीस्ट इस स्टेप पे ट्राई करो, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री, थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। ऐसा 1 by 8 is sin theta 1 minus cos square theta. This term has been transferred onto right side. Sin theta is taken common between these two terms, 1 minus cos square theta. 1 minus cos square theta is sin square theta. So this becomes sin cube theta. 1 by 8 is sin cube theta, which obviously means that sin theta is 1 by 2. Sin cube theta is 1 by 8, therefore sin theta is 1 by 2, which implies that theta is 30 degree.
So students, our analysis till now suggests that when this theta is 30 degree, this particle will leave the circle. We have assumed that at point P, particle leaves the circle, its speed is v at that point. What we did? Because particle leaves the circle at this point, it means tension becomes 0 here. So mg cos theta should be equal to mv square by r, because particle is on circle till now. Beyond that, it is no more on that circle. So mg cos theta is mv square by L. Next, there is a simple geometrical relationship. This is L by 8 given in the question. This is half the range of this projectile. So range ka आधा plus L by 8. This makes it L sin theta. In this triangle, this is L, this is theta. So this is L sin theta. L sin theta is L by 8 plus half the range. So L sin theta is L by 8 plus half the range. इस इक्वेशन से v स्क्वायर की वैल्यू निकालकर यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया, वी गेट द वैल्यू ऑफ थीटा. नाउ वंस यू नो द वैल्यू ऑफ थीटा, यू ऑल्सो नो द वैल्यू ऑफ v. You can substitute this value of theta into this equation. So from equation 1, v square is GL cos 30 degree, which means v is root 3 by 2 GL, root of that. So at this particular point where the particle leaves the circle, its speed is given by this expression. We know theta, we know v. क्वेश्चन में पूछा गया था u बताओ, u की वैल्यू बताओ, with what speed the particle was projected from this point. अभी भी आप में से कुछ लोग इस क्वेश्चन को आगे फर्दर ट्राई करना चाहेंगे, वीडियो पॉज कीजिए, अभी भी ट्राई कीजिए. हाउ टू गेट u. मैंने आपसे कहा है, बार बार कई बार कहा है कि वर्टिकल सर्कल में मोशन हो रहा है, किसी भी एक पॉइंट पे स्पीड पता है, दूसरे किसी भी पॉइंट पे स्पीड पता किया जा सकता है बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. यहां की स्पीड मुझे पता है, यहां की स्पीड पता करनी है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट A and P. Apply mechanical energy conservation between point A and P and you will get the answer. You can get the value of u. Apply law of conservation of mechanical energy. Please read this as law of conservation of mechanical energy between P and A. मैं ऐसा लिखता हूं, kinetic energy at A, potential energy at A is kinetic energy at P, potential energy at P. Sum of kinetic and potential energy remains constant as the particle moves, because only force that is performing work on it is mg, which is conservative. So kinetic energy at A is half mu square. Potential energy at A, let us assume 0, इसी को reference level मान लेते हैं. Kinetic energy at P is known to us half mv square. ये v है, so root 3 by 2 GL v square. What is potential energy at P? Obviously mg into this height h. ये रेफरेंस लेवल है, यहाँ से P की हाइट है, आसान है. ये L और इस ट्रायंगल में ये L cos थीटा, ये L, ये थीटा, ये L cos थीटा और ये L मिलकर के हो गया L plus L cos थीटा. सो mg h की जगह L plus L cos theta, right? So simplifying this will give you the value of u. M and M can be cancelled out from all the three terms.
m m m. Multiplying with 2 gives u square is equal to root 3 by 2 gl plus 2 gl 1 प्लस l को कॉमन ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 plus cos 30 degree. Cos 30 degree is root 3 by 2 because theta is 30 degree. So, that is all. This is your answer. GL by 2, you are left with root 3 plus you are left with 4 plus 2 root 3 if I am not wrong. Please check. GL by 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ रूट 3, यहाँ भी इन दोनों में LCM 2 नीचे ले लिया तो ये 2 प्लस रूट 3, 2 2 जा 4 और 2 रूट 3. So this becomes something like GL by 2 3 root 3 plus 4. This is u square. So square root of this is u. Please check the calculations once. Now there are two important things that I would like to mention here. First, अगर हम शुरू से ही इस क्वेश्चन में u को इन्वॉल्व कर लेते कि u पता करने को कहा गया है, तो सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, u और v में ये रिलेशन लिख लिया, v यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर होता, v नहीं पता है, फिर आपने वो सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन लिखा और फिर प्रोजेक्ट ये जो ज्योमेट्रिकल रिलेशन है वो लिखा. तो तीनों इक्वेशन को अगर आप मिक्सअप करके सोचेंगे तो शायद आप खो जाएंगे. आई एम नॉट श्योर कि आप कर पाएंगे कि नहीं. लेकिन हमने ये जो आखिरी स्टेप किया, क्या सोच कर किया, क्योंकि मैंने देखा दो ही, पहले अगर v पता है तो u डेफिनेटली पता है. पूरे सर्कल में कहीं भी एक पॉइंट पे स्पीड पता है तो दूसरे पॉइंट पे स्पीड पता है. सो आई वॉज नॉट फोकसिंग ऑन u, I was focusing on v. v पता चल गया तो u तो पता चल ही जाएगा. So I was focusing on v and theta. उसके लिए मैंने दो इक्वेशन देखे कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन है और ये एक ज्योमेट्रिकल रिलेशन है. They are sufficient. So I solved those two equations to get v and theta, and thereafter I applied energy conservation to get u. Secondly, the question was, I would say, a difficult one, at least at your stage. So many of you might be feeling depressed that IITs ask such difficult questions. Students, let me make a clarification. Yes, they may ask 1 or 2 or 3 difficult questions in the entire question paper, but not all questions are so difficult. That is the point to be noted. एक क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन इसी लेवल के डिफिकल्टी वाले हैं, नहीं इसी डिफिकल्टी लेवल वाले हैं, ऐसा नहीं है. ठीक है, 30 क्वेश्चन में 1 2 3 ऐसे हो सकते हैं, बट रिमेनिंग आर मच सिंपलर, मच सिंपलर. सो अगर आपने वो सारे सिंपल क्वेश्चन कर दिए और इन कठिन वालों में से भी कुछ कर दिए तो सर्टेनली विल गेट a rank within 100, ऑल इंडिया रैंक within 100. Many of you must be aiming for that also, I am sure. And secondly, this question may be apparently difficult at this stage, but such questions will no longer appear to be so difficult 1 year down the line. ऐसे थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन मैं क्लास में इसलिए भी लेता हूँ कि इन क्वेश्चंस को देखते देखते आप इस डिफ़िकल्टी लेवल से भी फैमिलियर होते चलो, तो 1 साल के बाद यही क्वेश्चन आपको काफ़ी आसान लगेगा. तो अभी आप IIT JEE का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे, शायद 1.5 साल बाद देने जा रहे हो, उस दिन ये क्वेश्चन किसी भी हाल में इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा.
So that is another thing. Okay. Here is your next question. Here is your next question. Look at this system. This block is resting on a horizontal platform. It has got mass capital M. Capital M is given. A light string is passing over an ideal pulley. Pulley is ideal, there is no friction, there is no mass. And this is spring that you can see in between. That is also ideal. It is an ideal spring. The other end of the string has a small mass, small m. This is not known. Originally, this mass is held so that the spring is relaxed. इसको मैंने ऐसे पकड़ के रखा है जिससे कि स्प्रिंग अभी रिलैक्स्ड है. Spring is relaxed, right? Mass m is released from this position. इसको छोड़ दिया. क्वेश्चन पूछता है फाइंड मिनिमम or smallest mass m, find the smallest value of small m so that the block leaves contact with the table. I have written it in short. What I am asking is, ओरिजिनली स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, कोई खिंचाव तनाव नहीं है, कोई कंप्रेशन नहीं है. इसको मैंने ऐसा पकड़ के रखा है. सडनली हाथ हटा ली, उसको गिरने दिया. इसकी कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये मास कम से कम कितना होना चाहिए जिससे कि ये ब्लॉक सब्सिक्वेंटली आगे चलकर इस टेबल को जस्ट छोड़ दे, इस टेबल से उठने की कगार पे आ जाए. इस मास की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए जिससे ये ब्लॉक टेबल को जस्ट छोड़ दे किसी पॉइंट पे? ये क्वेश्चन में पूछा गया है. कुछ देर आप सोचिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं एक हिंट देता हूं. स्टूडेंट्स, ये मास अपने वेट की वजह से नीचे चलेगा, ये नीचे चलेगा, लेकिन ये ऊपर चलना शुरू कर दे जरूरी नहीं है. क्यों? ये रस्सी स्प्रिंग है, स्प्रिंग खींच सकती है. जितनी ज्यादा स्प्रिंग खींचेगी उतना ज्यादा टेंशन होगा. ये पूरी चीज मासलेस है. ये जो रस्सी और स्प्रिंग सिस्टम है ये मासलेस है. तो थ्रू आउट दी स्ट्रिंग, कहने का मतलब एक रस्सी है, बीच में स्प्रिंग है, रस्सी है, फिर स्प्रिंग है, मान लो ऐसा कुछ चीज है, पूरा मासलेस है. तो यहां से लेकर यहां तक हर जगह टेंशन की वैल्यू एक ही होगी. टेंशन थ्रू आउट सेम है.
बिगिनिंग में जब आपने इसको छोड़ा तो ये तो नीचे चला, इस पे फोर्स है mg, टेंशन अभी 0 है। टेंशन तब होगा जब स्प्रिंग खींचेगी। जब यहां से रत्ती भर नीचे गया तो स्प्रिंग खींची, ये रस्सी लंबी हुई, स्प्रिंग एक्सटेंड हुई। जैसे ही स्प्रिंग एक्सटेंड हुई तो उसमें एक टेंशन डेवलप हुआ kx। वो टेंशन फोर्स इस ब्लॉक पे भी ऊपर लगता है और वो टेंशन फोर्स इस पे भी लगता है ना। जैसे ये ब्लॉक को छोड़ा, ये ब्लॉक नीचे चला तो स्प्रिंग एक्सटेंड हुई, नहीं तो ये नीचे कैसे जाएगा। स्प्रिंग थोड़ी सी एक्सटेंड हुई तो kx एक छोटा फोर्स है। बातचीत में आसानी के लिए मान लो कि इसका वेट है 20 न्यूटन, 2 kg का ब्लॉक है मान लो। अभी x इतना छोटा है कि k इंटू एक्स की वैल्यू 2 न्यूटन है। तो 2 न्यूटन का टेंशन और इसका वेट जो एक्ट कर रहा है mg, वो 20 न्यूटन का है। 20 न्यूटन वेट है और सिर्फ 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे होते, ये उठेगा थोड़ी, सवाल ही नहीं उठता, नहीं उठेगा। नॉर्मल रिएक्शन अभी टेबल का इस पे 18 न्यूटन होगा। नॉर्मल रिएक्शन 18 प्लस टेंशन 2 मिलके इसको बैलेंस कर रहे हैं। जब तक नॉर्मल रिएक्शन है तब तक कांटेक्ट नहीं छूटा। सिंपल सी बात, कोई चीज़ यहाँ रखी है तो उसको उठाने के लिए कम से कम उसके वेट के बराबर फोर्स लगाओगे तब तो उठेगा, कॉमन सेंस। तो अभी ये चलेगा नहीं, लेकिन इस ब्लॉक पे फोर्स बहुत बड़ा है, इसका वेट, टेंशन बहुत छोटा है इसके लिए, ये नीचे चल रहा है और नीचे चला। इसके और नीचे जाने से स्प्रिंग और खींच गई, x की वैल्यू और बड़ी हो गई। मान लीजिए x की वैल्यू इतनी हो गई कि kx की वैल्यू हो गई लेट अस से 12 न्यूटन। तो अब टेंशन 12 न्यूटन है, mg 20 न्यूटन है। अभी भी ये ब्लॉक नहीं चलेगा, कैसे उठेगा। ये अभी भी वहां टेबल पे बैठा रहेगा और ये नीचे गिरता रहेगा। ये थोड़ा और नीचे गिरा मान लीजिए, और x इतना बड़ा हो गया कि रस्सी में टेंशन, स्प्रिंग में टेंशन 19 न्यूटन हो गया। 19 न्यूटन, 19 ये 20, अभी भी ये नहीं चलेगा। लेट अस से इस समय ये ब्लॉक रुक गया। क्यों रुक गया ये? क्योंकि जब ये नीचे गिर रहा है, इसका वेट इस पे नीचे एक्ट कर रहा था, ठीक है ना। मान लो 1 मिनट के लिए इसका वेट है 9 न्यूटन, 1 मिनट। जैसे जैसे स्प्रिंग में खिंचाव बढ़ता जा रहा है, इस पे भी तो फोर्स बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट आया बीच रास्ते में जब स्प्रिंग में टेंशन 9 न्यूटन था, क्या ये वहां रुक जाएगा? शायद पिछली क्लास में ही हमने देखा था कि नहीं, ऐसी जगह पे रुकेगा नहीं, क्योंकि अभी शुरुआत में वेट फोर्स बड़ा था, टेंशन छोटा था, तो इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये पहली बार हुआ है जब ऊपर वाला फोर्स ठीक इसके बराबर हुआ, नहीं तो इसके पहले तो ये 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन था स्प्रिंग फोर्स। तो 9 न्यूटन तो बड़ा फोर्स था, इसकी स्पीड बढ़ रही थी। बढ़ते 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 एक पॉइंट ऐसा आया जब रस्सी में खिंचाव 9 न्यूटन, स्प्रिंग में टेंशन 9 न्यूटन। क्या है वहाँ रुक जाएगा? आंसर है नहीं, अभी भी नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, क्योंकि इसके पास अभी बड़ी स्पीड है। तो जब ये और नीचे जाएगा तो ये स्प्रिंग का टेंशन बढ़ के 12 न्यूटन हो गया, क्योंकि एक्स और बढ़ गया, के एक्स और बढ़ गया। अब ये स्लो होने लगा, तो हो सकता है कि नीचे नीचे जाते 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 लेट अस से 19 या 18 न्यूटन, 18 न्यूटन जब स्प्रिंग में टेंशन हुआ तो ये रुक गया। के एक्स 18 न्यूटन है, इस पे फोर्स 18 न्यूटन लग रहा है ऊपर, और इसका वेट है 20 न्यूटन। क्या ये उठेगा? ये ब्लॉक रुक चुका है, अब और नीचे नहीं जाएगा, स्प्रिंग और नहीं खींचेगी। ये बॉल रुक चुका है, स्प्रिंग और नहीं खींचेगी, और स्प्रिंग का टेंशन अभी सिर्फ 18 न्यूटन है। तो क्या ये ब्लॉक उठेगा? आंसर है नहीं। लेकिन अगर ये बॉल हमने थोड़ा और भारी लिया, जिससे कि ये थोड़ा और नीचे जाए, जिससे कि जब ये स्पीड बढ़ेगी शुरू में इसकी, फिर ये स्लो होगा, जिस समय ये रुका उस समय स्प्रिंग इतनी खींच चुकी है कि जो टेंशन है वो 20 न्यूटन के इक्वल हो चुका है। सोच के देखो, अगर हम इसको बहुत हल्का लेंगे, बहुत कम भारी, तो ये तो बस यहां जाके रुक जाएगा।
स्प्रिंग फोर्स मुश्किल से 10 न्यूटन हो पाया, ये 20 न्यूटन है, तो ये क्यों चलेगा? नहीं चलेगा। इसको और भारी किया, एक ऐसी जगह पे जाके रुक सकता है जिसमें स्प्रिंग टेंशन 18 न्यूटन है, ये 20 है, अभी भी नहीं चलेगा। इसको थोड़ा और भारी किया तो ऐसा पॉइंट आ सकता है कि जब ये रुके उस समय टेंशन ठीक 20 न्यूटन है, mg के इक्वल है। तो जस्ट ये रुका और ये ब्लॉक जस्ट फ्लोर को छोड़ा, वही इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू हुई। अगर इससे भी भारी इसकी वैल्यू ले लेंगे तब तो ये काफी नीचे तक जा सकता है, ये उस पॉइंट पे पहुंचा जहां टेंशन 20 हो गया, उसके आगे भी जा रहा है तो टेंशन शायद 21 भी होगा, तब तो ये ब्लॉक जंप ही कर जाएगा, उड़ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ जिससे जस्ट ये टेबल को छोड़ दे, जस्ट छोड़ दे, जस्ट छोड़ दे, मतलब टेंशन ठीक mg के इक्वल हो जाए। तो इस बॉल को गिरते 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 वहां जाके रुकना है। अगर इसके पहले ही गिरते 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 ही टेंशन mg से बड़ा हो गया तब तो ये जंप ही कर जाएगा, नो डाउट। लेकिन हमें इसकी सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है जिससे कि ये जस्ट बस हिल सके, माने टेंशन जस्ट mg के इक्वल हो सके। तो ये साहब चले 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 जहां रुके उस पॉइंट पे टेंशन mg के इक्वल है, उससे बड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, पर जस्ट उसके इक्वल है तो हम बोलेंगे इस ब्लॉक ने टेबल को छोड़ दिया। इतना सुनने के बाद फिर से पॉज बटन दबाइए, ट्राई कीजिए। फिजिकल अंडरस्टैंडिंग इज स्लाइटली डिफिकल्ट इन दिस क्वेश्चन। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। when the falling mass this mass m stops, when this mass stops, at that instant the tension must be at least equal to capital mg for this block to leave the table. So students, basically let us assume that this block never leaves the table. Let us assume that it is there on the table. This is the initial position and spring has been extended. This ball has fallen a distance x before it comes to rest. This ball just comes to rest after having fallen through a distance x. ये बॉल जितना नीचे गिरेगा उतनी ही ये स्प्रिंग एक्सटेंड हो गई है। इस समय जो टेंशन है वो mg है, विच मीन्स kx mg के इक्वल है, विच मीन्स x इज इक्वल टू mg बाई k। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये ब्लॉक जस्ट उठे, उसके लिए टेंशन ठीक mg के इक्वल है, विच मीन्स स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है x वो mg बाई k के इक्वल है। ये ब्लॉक जस्ट उठ सके इसके लिए स्प्रिंग का एक्सटेंशन mg बाई k के इक्वल है, mg बाई k के इक्वल है।
तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये बॉल कम से कम इतना डिस्टेंस गिरता है रुकने के पहले तक। तो हम ऐसा ही मान रहे हैं कि यहां से छोड़ा, एक्स डिस्टेंस गिर के रुक गया, अभी तक ये मूव नहीं हुआ है, जस्ट यहां पहुंचा और इसकी छोड़ने की हालत हो गई। इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो चुकी है। तो आप एनर्जी कंजर्वेशन अगर अप्लाई करोगे पूरे सिस्टम के लिए, जो कर सकते हो, क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पूरे सिस्टम के लिए कर सकते हैं क्या? कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं? एमजी, स्प्रिंग फोर्स। अरे यार, लेकिन इस पर तो नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है। लगा सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, लगाएं, बिल्कुल लगाएं। ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है तो लगने दो। नॉर्मल रिएक्शन जिस ब्लॉक पे लग रहा है, क्या वो ब्लॉक अभी तक चला है? तो उस फोर्स ने कोई वर्क किया? नहीं। वर्क करने वाले दो ही लोग हैं, टेंशन, स्प्रिंग टेंशन और एमजी, दोनों कंजर्वेटिव है, इसलिए एनर्जी कंजर्व है। बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन, बहुत सिंपल, एकदम सिंपल ऑब्जर्वेशन। अब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल नहीं लिख के ऐसे ही देखो, सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, नथिंग हैज मूव्ड। तो ये जो बॉल गिरा, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgx घट गई, यहां से यहां आ गया। ये कहां चली गई? ये स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी बन गई, स्प्रिंग एक्स स्ट्रेच हो गई है, यही हुआ है ना, सिंपल। बाकी कहीं न पहले काइनेटिक एनर्जी थी ना एंड में। सो यू कैन राइट mg इज हाफ के एक्स। एक्स की जगह आप ये लिख सकते हैं, या के एक्स की जगह आप ये लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन 1। एक x कैंसिल कर दिया और k इंटू एक्स की जगह mg लिख दिया, तभी तो ये ब्लॉक उठेगा जब k इंटू एक्स mg के इक्वल होगा। सो दिस मीन्स स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M बाई 2। अगर ये 2 kg का ब्लॉक है, 1 kg का ब्लॉक लेने से ये गिरेगा 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 गिरेगा, जहां रुकेगा उस समय स्प्रिंग इतनी खींच चुकी है कि स्प्रिंग फोर्स जस्ट इसके वेट 20 न्यूटन के इक्वल हो चुका है। दिस इज रेडी टू लीव द टेबल। अगर 1 kg से ज़्यादा का है तो और नीचे जाएगा, ऑब्वियसली ये तो टेबल को छोड़ ही देगा, ऊपर उठ जाएगा। तो मिनिमम मास स्मॉल m शुड बी 1 kg सो दैट कैपिटल M reaches basically verge of leaving the table. अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो क्या फर्क पड़ता? सेम क्वेश्चन ऐसा होता तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरी थ्रेड जो है इंक्लूडिंग दिस स्प्रिंग इज मासलेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्स खींचेगी तो टेंशन के एक्स होगा थ्रू आउट। इसमें क्या हो रहा है, ये जब ये बॉल नीचे चल रहा है, ये स्प्रिंग खींच रही है और रस्सी पुली के ऊपर से ऐसे पास होके इधर जा रही है। स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर खींची तो ये 10 सेंटीमीटर रस्सी इधर पास हो गई और ये नीचे चला गया। यहाँ क्या हो रहा है, रस्सी पास नहीं हो रही है, रस्सी फिक्स्ड है, इस साइड में फिक्स्ड है। ये जितना एक्सटेंड होता है उतना ये नीचे गिरता है। बट एज फार एज टेंशन इज कंसर्न, देयर इज नो डिफरेंस, नो डिफरेंस एट ऑल। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, ओके,
Let us have another question which is also not very difficult, but please give it a try. Suppose this is an inclined plane. This is a spring of force constant 20 Newton per meter. This is a very long spring, right? There is a block of mass 2 kg placed here. The entire inclined plane is rough. Coefficient of friction is 0.2. Simple question. Just frame the equation for me. Find the maximum compression in the spring after the block is released. इस block को यहाँ से छोड़ा, it slides down. What will be maximum compression in the spring if it is given that initially the block is at a distance of 1 meter from the free end of the spring? Find maximum compression in the spring. इस block को यहाँ से छोड़ा, it slides down and compresses the spring. Find the maximum compression produced in the spring after the block is released. The whole inclined plane is rough. Coefficient of friction is 0.2. बताइए, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए. कुछ नहीं, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स है जो अदर की क्लास का फोर्स है, मतलब कंजर्वेटिव नहीं है, तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हैं, हमें वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना चाहिए. दैट्स ऑल. सो लेट अस से कि ये ब्लॉक यहाँ से छोड़ा गया और स्प्रिंग को एक्स कॉम्प्रेस करने के बाद रुक गया, यहाँ आकर रुक गया. यहां से लेकर यहां के बीच में हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे. इनिशियल पोजीशन में ब्लॉक यहां है, फाइनली यहां है. वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय अदर फोर्सेस, एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, अदर की क्लास वाला फ्रिक्शन. दिस इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. काइनेटिक और पोटेंशियल फाइनल, काइनेटिक और पोटेंशियल इनिशियल. चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय अदर फोर्सेस. फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्या लिखोगे तुम जब ब्लॉक यहां से यहां आया? क्या लिखोगे? लिखो, फ्रिक्शन फोर्स है म्यू एम जी कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 + x. 1 मीटर ये और स्प्रिंग x और कंप्रेस हो गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 1 + x इधर और फ्रिक्शन फोर्स ऑफ कोर्स इधर लग रहा है म्यू एम जी कॉस थीटा. तो मैं लिख दे रहा हूं ऐसा, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू 1 + x विथ ए निगेटिव साइन. निगेटिव क्यों? डिस्प्लेसमेंट इधर, फ्रिक्शन ऊपर. फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ब्लॉक चला 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 रुक गया, 0. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी है. एक स्प्रिंग वाली जो ½ kx² है, स्प्रिंग x कॉम्प्रेस्ड है, और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसको मैं यहीं पे 0 मान ले रहा हूं. ठीक है. तो जब फाइनल पोजीशन में ब्लॉक यहां रुका तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ½ kx², ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0. इनिशियल पोजीशन में जब ब्लॉक यहां था, ये लिख रहा हूं, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. एक सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज mgh. ये रेफरेंस लेवल है. h कितना होगा देखिए, x + 1 sin 37 डिग्री, 1 + x sin 37 डिग्री. ये राइट एंगल ट्रायंगल में खुद से देख लो. दिस हाइट इज
this is 1 plus x, this is 1 plus x sin 37 degree. तो mgh, mg 1 plus ये टर्म लिख रहा हूं फिर से, काइनेटिक जीरो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो, mgh, h is 1 plus x sin 37 degree is obviously 3 by 5, so 3 by 5. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जीरो, ग्रेविटेशनल एनर्जी mgh, h का मतलब 1 plus x sin 37, sin 37 is 3 by 5. So students, values are known here except for x. x के अलावा सारी values पता है आपको, mu पता है, m पता है, g पता है. So this is a quadratic equation in x and this will be your home assignment. Solve it on your own to get the value of x. So that's all in today's class. Thanks a lot. In next class we will start with a new chapter, that is momentum and center of mass. Thank you.